السلام علیکم جی، ویلکم کرتے ہیں ہم آپ کو ایک اور نئی ویڈیو میں۔ جیسے کہ کچھ ہی دیر پہلے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ انالیسس شیئر کیے تھے جی گولڈ کے، تو گولڈ کے اوور ویو کے بعد انشاءاللہ ابھی میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہمارے اپ کمنگ پیئرز ہیں جن میں ہم جی بی پی یو ایس ڈی، یورو یو ایس ڈی، جی بی پی کیڈ ہو گیا، یورو کیڈ ہو گیا اور یو ایس جے پی وائی، مطلب کہ 5 پیئر کے انالیسس جیسے ٹائم ٹو ٹائم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں۔ تو کچھ ہی دیر پہلے میں نے آپ لوگوں کو سگنل بھی دیا تھا 1975.20 to 1980 اس کا ٹی پی تھا۔ شاید آپ لوگوں نے دیکھا ہو یہ سگنل، یہ اس کا راؤنڈ اباؤٹ ٹی پی 1 ہمارا ہٹ بھی ہو چکا ہے۔ یہ ہمارا وی آئی پی روم ہے، تو یہ دیکھیں یہ سگنل تھا۔ یہاں سے 9:42 پہ میں نے سگنل دیا جی، اور اراؤنڈ اباؤٹ 11 بجے کے آس پاس 11:20 پہ اس کا ٹی پی بھی ہٹ ہو گیا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ریسنٹ میں نے ابھی یہ بھی انالیسز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے جی، اسرائیل اور غزہ کی وار کے حوالے سے آپ نے گولڈ کو کیسے ٹریڈ کرنا ہے، ایسا یہ بھی چیزیں کچھ بتائی ہیں۔ چلو اس کے بعد دیکھتے ہیں اپنے جو ہمارے پیئرز ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں جی جی بی پی یو ایس ڈی کا انالیسز کر لیتے ہیں جی، کہ جی بی پی یو ایس ڈی میں جو لاسٹ میں نے پریڈکٹ کیا تھا اس میں کیا ہوا، ہم نے کیا کھویا اور ہم نے کیا اس میں پایا۔ تو تھوڑا سا مجھے 1 منٹ میں اسے سیٹ کر لوں۔ اچھا، یہ وہ انالیسس تھا جی بی پی یو ایس ڈی کا جو کہ لاسٹ ٹائم میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا، جو کہ اس ویکینڈ سنڈے کے اوپر ہی تھا۔ اس وقت جی بی پی یو ایس ڈی موجود تھا اس زون کے اوپر، یہ جو ایگزیکٹ جہاں سے مطلب ہے کہ یہ گرین کینڈل آپ کو مل رہی ہے جی، یہ والی منڈے والے دن، منڈے کو میں نے انالیسس دیا تھا۔ تو مارکیٹ جو ہے نا اسی زون سے میں نے کہا کہ ریٹریس ہوگی، نیچے آئے گی، اسے ٹیسٹ کرے گی۔ مارکیٹ سیم اسی زون کو ٹیسٹ کر کے نیچے آئی۔ جیسے کہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو راؤنڈ اباؤٹ مارکیٹ آئی تھی 89 سے اس نے ٹچ کیا جی 2089، مطلب ہے کہ 90 پپس وہ ہو گئے، اور اس کے بعد یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ موجود ہے اس وقت 68 کے اوپر۔ تو آپ اسے اگر کاؤنٹ کر لیتے ہیں 90 پپس اور 32 پپس، تو راؤنڈ اباؤٹ اس انالیسس سے بھی ہم نے 130 پپس یا 122 پپس گین کر لیے۔ اچھا، دین پھر میں نے آپ لوگوں کو بائی کا مومنٹم بھی دیا تھا کہ یہ اسے ٹچ کر کے بائی بھی کرے گا۔ تو آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہی مارکیٹ نے اس زون کو ٹچ کیا، اب یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں تک، تو مارکیٹ نے اسے ٹچ کیا اس زون کو، دین اس نے کیا کیا جی، بائنگ کی اپرچونٹی بھی دی ہمیں۔ اور اگر ہم دیکھیں یہاں سے 74 سے مارکیٹ گئی جی 92 تک، 74 سے 92 تک، تو ہم نے یہاں سے بھی اچھے خاصے پپس گین کر لیے۔ تو نیکسٹ آپ انالیسز دیکھتے ہیں جی بی پی یو ایس ڈی کا۔ شارٹ سا ٹائم ہے کیونکہ تمام ٹریڈر اس وقت ٹریڈنگ کر رہے ہوں گے، میری بھی کوئی ٹریڈز لگی ہوئی ہیں، میں نے ان کو بھی جو ہے نا مانیٹر کرنا ہے۔ تو ابھی H1 کے اوپر سب سے پہلے جب بھی میں انالیسس دیتا ہوں تو آپ کو یہی کہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو آپ نے نا H1 کے اوپر ریجیکشن فائنڈ کرنی ہے، یا M30 کے اوپر کوئی آپ کو پرائس میں فال نظر آئے، دین آپ مارکیٹ میں انٹر ہوں۔ تو انالیسز میں H4 کے اوپر کرتا ہوں زیادہ تر، آپ لوگوں کو اس بات کا کلیئر پتہ ہے کہ میں انالیسز زیادہ تر H4 کے اوپر ہی کرتا ہوں، اور میرا جو کام ہے تقریباً وہ بھی سارا H4 کے اوپر ہی ہوتا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے اہم بات تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو اس وقت زون ہمیں ملا ہے کہ مارکیٹ نے اس زون کو کیا دیا جی، رسپیکٹ دی ہے۔ اسے میں بلیک کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ اچھا جی، مارکیٹ آئی اس زون پہ، اس نے کیا کیا جی، ایک
यहाँ से हमें रिजेक्शन प्रोवाइड की। देन मैंने आपको कल GBP USD में सिग्नल भी प्रोवाइड किया था, शायद आपको याद हो। तो जो हमारे बाई में मेंबर्स बैठे हुए हैं तो उनको इस चीज़ का पता होगा। ये वो सिग्नल था जिससे हमने 80 पिप्स का प्रॉफिट अर्न किया था। तो अब इस वक्त अगर हम देखें तो इस वक्त मार्केट मौजूद है एग्जैक्ट इस कैंडल के ऊपर मार्केट खड़ी हुई है। अब होना क्या है कि मार्केट में आपने सबसे पहले थोड़ा सा एक क्या कर लेनी है जी कि जोन्स ड्रा कर लेने हैं। अब सबसे जो पहला जोन मुझे नज़र आ रहा है वो ये वाला जोन है। इस जोन को मैं कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ इन बाइंग की पोजीशंस में, और उसके बाद अगेन जो है ना फिर मैं इस जोन की तरफ बढ़ूँगा। ठीक हो गया, ये मेरे जोन्स हो गए। अब कहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी हमने फाइंड करनी है। जो बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है वो भी मैंने आपको जोन बता देता हूँ। सबसे पहला जो आपकी नज़र में जोन होना चाहिए, देखें फॉरेक्स मार्केट है, इसमें एनालिसिस जो होते हैं वो प्रीवियस जो इसकी हिस्ट्री होती है उसी की बेस के ऊपर ही एनालिसिस प्रोवाइड किए जाते हैं। तो हमेशा याद रखें कि आपने इस कि कल इस मार्केट में क्या हुआ था उसको आपने स्टडी करना है, तभी आप अपना जो आने वाला टुमारो है आप उसको क्या कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं। अच्छा, तो एक ये भी हमारे पास जी बिल्कुल ये भी एक जोन है। थोड़ा सा मुझे टाइम दे दे, मैं जोन ड्रॉ कर लूँ, देन फिर इंशाल्लाह जो है ना आप लोगों को। अच्छा, तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, वेट करना है कि मार्केट आए। पॉसिबल ये है कि इस जोन को क्या करती है, टेस्ट करती है। टेस्ट करने के बाद जो आपका फर्स्ट टारगेट होगा वो ये वाला टारगेट है। ठीक हो गया, ये हमेशा याद रखें कि इन केस के मार्केट अगर ऊपर ही से ऊपर जाती है, मतलब है कि यहाँ से उसने जो अपना एक इसे हम क्या कह सकते हैं जी कि लोअर हाई कह सकते हैं, ये इसका लोअर लो है डेली का, या आप जिस भी कैंडल पे काम करते हैं। तो मार्केट आती है, इसे टेस्ट करती है, जब वो इसे रिस्पेक्ट देती है उसके बाद यहाँ से आपने H1 या M30 में देखना है कि आपको कोई कैंडल मिलती है, कौन सी कैंडल मिलती है, रिजेक्शन वाली कैंडल, देन आपने बाइंग करनी है और आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 75 तक का होगा। अच्छा जी, अब इसमें नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है। अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि अगर मार्केट क्या कर लेती है जी कि इस जोन को क्या कर लेती है, टेस्ट कर लेती है, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक अगर आप देखें तो एक मौजूद है, प्राइस का रिवर्सल्स भी मौजूद है। तो हमने इसमें भी थोड़ा सा इसको स्टडी करना है। अब मार्केट आती है इस जोन तक, और ये भी जोन हमारे पास एक वैलिड जोन बनता है। इस जोन में ये जो जोन अभी मैंने आपको दिया है 75 से 200 का जो जोन है, मतलब 25 पिप्स का ये जोन है, कि अगर मार्केट इस जोन को रिस्पेक्ट देती है, इसके अंदर सर्कुलेट करती है, सर्कुलेट करने के बाद यहाँ से वो कोई प्राइस में आपको रिवर्सल्स देती है। प्राइस में रिवर्सल किस तरह होता है, जैसे कि ये रिवर्सल ठहरा हुआ है कि H1 इसके ऊपर क्लोज नहीं होता, ये जो जोन है 200 का जोन है, अगर H1 इसके ऊपर क्लोज नहीं होता तो देन आपने यहाँ से शॉर्ट टर्म के लिए सेलिंग देखनी है, और वो सेलिंग आपको कहाँ तक लेकर आपने आनी है, उस सेलिंग को आप राउंड अबाउट फर्स्ट जो है ना आप इस जोन तक देखेंगे। अगर इस जोन को भी मार्केट ब्रेक कर देती है तो देन फिर आप क्या करेंगे, जो पॉसिबिलिटी है सेलिंग की वो हमें यहाँ तक नज़र आती है। इन केस के अगर मार्केट क्या करती है, इस जोन को रिस्पेक्ट देती है, H1 इसके ऊपर क्लोज नहीं होता। अब H1 की क्लोज होने की जो एग्जांपल्स हैं वो मैं थोड़ी सी आप लोगों को बता दूं कि ये जो आप लोगों को इस वक्त H4 दो नज़र आ रहे हैं बेसिकली, तो इन H4 को हम ऊपर क्लोज हुआ H4 कंसीडर्ड नहीं करते।
ٹھیक हो गया जी। ये क्या है, इसकी एक इसे हम कहते हैं कि ये वीक क्लोज होती है जब H4 की बॉडी इसके ऊपर क्लोज हो। बॉडी किसे कहते हैं कि जैसे अब मिसाल के तौर पे एक कैंडल यहाँ से बनती है, वो उसके बाद क्या होती है, यहाँ पे आके क्लोज हो रही है, ये कैंडल क्लोज हो गई जी। उसके बाद अब क्या होता है, इस कैंडल की जो ये इसने अपना एक क्या बना लिया है, एक हाई इसने अपना एक बना लिया है। जो भी है इस कैंडल का मतलब है कि इसकी बॉडी अब इतने तक क्या हो चुकी है जी, ये इसकी बॉडी क्लोज हो चुकी है, ये इसकी वीक है। तो इसे हम कंसीडर करेंगे एज ए क्या कि ये इस जोन को ब्रेक करके, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोज हुई है। तो उसके बाद होता क्या है, उसके बाद ये होता है कि ये इस जोन को टेस्ट करेगी, इस जोन को जो ही टेस्ट करेगी और देन फिर इसमें क्या होता है, देन फिर ये अपना जो इसने हायर हाई उस वक्त का बनाया हुआ है, तो ये उसको जो ही ब्रेक करे तो तब आपने अपनी क्या कर लेनी है जी, एंट्री यहाँ से एग्जीक्यूट कर लेनी है बाइंग की। और आपका जो एसएल होगा वो जो प्रीवियस कैंडल होगी, जो इस कैंडल जो इस हाई को ब्रेक कर रही है, उसकी जो प्रीवियस कैंडल होगी उसके विक पर होगा। जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि ये हमारे पास एक क्या मौजूद है, यहाँ से हम कंसीडर करते हैं ये वाला जो एक हमारे पास एरिया मौजूद है। अब इसको मैं कलर कोई और दे देता हूँ, ताकि रेड कलर दे देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि ये मैंने एक हाई मार्क किया। मैंने कहा कि अगर H1 इसके ऊपर क्लोज होता है, अब ये वाला जो इसे आप H1 ही कंसीडर करें, बेसिकली ये H4 की मैं बात कर, इधर मैं H4 में एनालिसिस कर रहा हूँ, जस्ट आपको H1 में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब अगर इसे आप देखते हैं तो आपकी नज़र में क्या आता है कि ये जो H1 है, ये जो H4 है, ये इसके ऊपर क्लोज़ हुआ है, नहीं क्लोज़ हुआ। ठीक हो गया, क्लोज़ क्यों नहीं हुआ कि आप देखें जस्ट इसकी वीक ही उसके ऊपर गई है। ये जो H4 है इसे भी आप कंसीडर कर सकते हैं, बॉडी राउंड अबाउट 20 to 30% इसके ऊपर क्लोज़ होनी चाहिए, वो स्ट्रॉन्ग जो है ना कन्फर्मेशन होती है। ठीक हो गया जी। अब अगेन क्या करना है, ये वाला H1 ये जो है ना हम क्या करते हैं, इसको हम कंसीडर करते हैं इस H1 को। उसके बाद अब ये इसने अपना एक हाई लगाया, देन मार्केट आई, इसे टेस्ट किया। ठीक हो गया। एग्जैक्ट टेस्ट करने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है, बाइंग लगानी है। ठीक हो गया जी। बाइंग से आप अपना जो छोटे छोटे टारगेट हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे। ये वाली इस कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, जो ही इस कैंडल ने इसे ब्रेक किया। ठीक हो गया जी। उसके बाद जो आपका एसएल था, वो आपका एसएल कहाँ था, इसकी वीक के ऊपर। तो आप देखें ये वाली कैंडल जहाँ से मार्केट रिवर्स भी आई, देन पुश हुआ, देन जाके उसने आपका जो टारगेट है उसे हिट किया और ठीक हो गया। उसके बाद फिर फॉल हुई। अब अगेन अगर हम बात करें कि फॉल की, कि यहाँ से एक दफ़ा मार्केट ने इसे ब्रेक किया, देन वो नीचे आ रही है, तो इसे जब टेस्ट किया, अगर ये इस जोन को क्या करती जी, इस जोन को वैलिड करार देती तो इसे टेस्ट करती, टेस्ट करने के बाद फ़ौरन बूम हो जाती। तो अच्छा, ये एनालिसिस है, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया इस एनालिसिस पे, तो इंशाल्लाह अगर आपकी कोई क्वेरीज़ होती हैं तो आप ज़रूर बताया करें। तो हमारा टारगेट अगेन बाइंग में है, ओवरऑल हम बाइंग में देखेंगे, लेकिन इन शॉर्ट टर्म अगर आपको कहीं से इन पॉइंट्स पर रिजेक्शन मिलती है तो आप सेलिंग भी कर सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा एनालिसिस होगा वो हम यूरो यूएसडी पे देख लेते हैं जी, कि यूरो यूएसडी की जो पोजीशन है वो क्या है और उसमें हम कौन सी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो लास्ट एनालिसिस यूरो यूएसडी का भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह। वो डेली टाइम फ्रेम पे था। शायद आप लोगों को याद हो कि मैंने आप लोगों को ये कहा था, ये क्लियर बताया था कि यूरो यूएसडी उस वक्त इस जगह पे मौजूद था, यहाँ पे मौजूद था। मैंने कहा कि ये आएगा, इसे इस जोन को टेस्ट करेगा, नीचे वाले को, देन बाइंग में की पोजीशन में आप बैठें। तो एग्जैक्ट उसने यहाँ से टेस्ट किया, देन वो यहाँ तक गया और बाइंग की पोजीशन में बैठा। तो अभी तक ना मैंने यूरो को सेल किया है, ना मैंने जीबीपी को सेल किया है, और ना मैंने क्या किया है जी, गोल्ड को सेल किया है। जस्ट कल की ट्रेड में मैंने गोल्ड को सेल किया था और एक टाइम पहले किया था, एज़ पर जो हमें यहाँ से
دی वॉल स्ट्रीट जर्नल से कोई कंफर्मेशन मिलती है तो तभी हम उनको सेलिंग की पोजीशन में देख लेते हैं। इसका एनालिसिस बेसिकली अभी हम कह सकते हैं जी कि वैलिड है, वैलिड जोन इसका अभी तक वैलिड है, क्योंकि आपने जस्ट वेट करना है मार्केट का। H4 पे ले जाते हैं हम इसे। एनालिसिस में वीडियो इसलिए लंबी हो रही है कि मैं आपको क्लियर चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप लोग कम से कम अपने लॉस को या अपने अकाउंट जो है उसे कम से कम उस पे आप रिस्क लें। तो सबसे पहले अगर आप इस जोन को स्टडी कर लेते हैं तो ये वाला जो जोन है हम इसे देख लेते हैं। थोड़ा सा इसको जी, ये वाला जोन हो गया। अब सबसे पहले तो आपने कोशिश करनी है कि आपने इसे क्या कर लेना है जी, वेट करना है मार्केट का। वेट कहाँ से कहाँ तक करना है, अभी आपके पास कितने जोन्स मौजूद हैं वो भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। एक जोन हमारे पास ये भी मौजूद है, ये भी एक बड़ा वैलिड जोन है जिसे मार्केट ऑलरेडी टेस्ट कर चुकी है जी। तो अब आपने क्या करना है कि मार्केट को आने देना है इस जोन को। अगर वो टेस्ट करती है तो उसके बाद आप बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ में फार्म बैठ सकते हैं और आप अपने शार्ट जो है ना क्या कर सकते हैं। ये आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा, अगर मैं आपको बता दूं कि हाँ जी, इस टारगेट को मैंने एज ए फर्स्ट टारगेट रखा है क्योंकि इसमें मुझे काफ़ी अच्छी कंफर्मेशन नज़र आ रही है। तो आप भी अपने तरीके से एनालिसिस किया करें, जो भी आपको चीज़ नज़र आ रही होती है मार्केट में उसे देखा करें। तो ये हो गया। अब इन केस के मार्केट इस वक्त मौजूद है राउंड अबाउट इस जोन पे, तो अगर ये मार्केट इसके ऊपर अपना H1 क्या कर लेती है, क्लोज़ कर लेती है, तो देन आप यहाँ से बाइंग में बैठें और बाइंग की जो अपॉर्चुनिटी है वो आप कहाँ तक देख सकते हैं, वो आप राउंड अबाउट ये वाला जोन है हमारे पास एक, इस जोन तक भी देख सकते हैं, आप इसको भी टैकल कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट टारगेट होगा, नेक्स्ट टारगेट आपका ये वाला जोन होगा। ठीक हो गया जी। यहाँ सॉरी, इसको हम हटा देते हैं। अगेन से मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि ये जो जोन है हमारा, इस जोन तक हम अगेन बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ को क्या करेंगे जी, मार्केट में देखने की कोशिश करेंगे। तो ये हो गया। उसके बाद अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड करना चाहते हैं तो वेट करें, और आपका जो एसएल होगा वो 40 to 60-80 पिप्स का होगा, और आपका जो टेक प्रॉफिट होगा वो राउंड अबाउट 200 to 250 पिप्स का होगा। तो उसके बाद हम देख लेते हैं जी, जीबीपी कैड को देख लेते हैं कि जीबीपी कैड में बेसिकली मैंने लास्ट टाइम क्या बोला था, क्या हुआ था, और उससे हमने क्या कमाया या क्या खोया भी हम कह सकते हैं। अच्छा जी, तो जीबीपी कैड की जहाँ तक बात इस वक्त मुझे नज़र आ रही है, या जीबीपी कैड में जहाँ तक हमने आप लोगों के साथ जो एनालिसिस शेयर किए थे, तो ये आप देख सकते हैं। ये बेसिकली उस वक्त मुझे याद है मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम पे ही एनालिसिस करके दिए थे। ये वाला एनालिसिस था, शायद आपको याद हो। मार्केट यहाँ पे मौजूद थी तो नीचे आई, देन मार्केट ने इस जोन को एग्जैक्ट टेस्ट किया और फिर वो बूम हुई। ये दो फिगर मैंने आपको बताए थे, एक एग्जैक्ट था इस जोन तक, और देन मार्केट ने, आप देखें यहाँ से तो आप लोगों को अच्छे खासे पिप्स भी मिल चुके हैं। अगर आप देखें तो 5-6 से मार्केट गई जी, अगेन 5-6-8 वाला, तो राउंड अबाउट यहाँ से आपने 450 to 500 पिप्स का प्रॉफिट गेन कर लिया। तो अच्छा, इसको हम अगर छोटे से H4 के एनालिसिस पे देख लेते हैं तो हमें H4 में नज़र क्या आ रहा है। अब H4 बड़ा ही क्लियर इंडिकेट कर रहा है मार्केट को कि सबसे पहले तो आपने इस जोन को स्टडी कर लेना है, ये वाला जो जोन है। अब शार्ट सा फॉल नज़र आ रहा है, यहाँ से मार्केट आती है, इसे रिटेस्ट करती है, यहाँ से आप बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ में बैठें इन केस के यहाँ पे H1 आपको कोई इसके नीचे उसकी बॉडी क्लोज ना हुई हो तो। अच्छा जी, उसके बाद अगेन आपका जो टेक प्रॉफिट का लेवल होगा वो यहीं होगा। शार्ट लेवल्स रखेंगे। फर्स्ट आप इस जोन को टैकल करें, 9-6 का जोन हो गया, देन आप टैकल करेंगे 3-8 का जोन हो गया, और देन आप उसे फिर बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ में ही फाइंड करेंगे। अगर आप इसके चैनल को देखें तो बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का ये इस वक्त एक बाइंग का चैनल क्रिएट हो रहा है। एक मिनट,
मिनट, हाँ जी। तो इसको हम हटा देते हैं एनालिसिस को। अब इसको भी हम हटा देते हैं, ये हमारा लास्ट एनालिसिस था। अगर आप देखें तो एग्जैक्ट बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का बाइंग का चैनल जहाँ पे मार्केट में फार्म हो रहा है। अगर आप इसको देखें बिल्कुल एग्जैक्ट बाइंग के चैनल को टेस्ट देगा। टेस्ट देने के बाद मार्केट फिर क्या करती है, उसको उसके ऊपर मूव ऑन हो जाती है। ठीक हो गया। तो इसको आप थोड़ा सा देखें, ये हमारे पास अपर ट्रेंड लाइन हो गई। उसके बाद अगर हम इस चैनल को स्टडी करते हैं, ये वाला जो इस वक्त फार्म हो रहा है चैनल, जो कि तो ये भी बड़ा ही एक वैलिड हमारे पास चैनल है जो कि इस वक्त यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये हो गया। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट मूव करते हैं हम यूरो कैड के ऊपर। यूरो कैड में भी अच्छी खासी हमने बाइंग की पोजीशंस देखी थी, शायद आप लोगों को अगर याद हो तो उसमें भी हमने प्रॉफिट अर्न किया था अच्छा खासा। और उस प्रॉफिट से हमने मतलब है कि डेली टाइम फ्रेम पे ही मैंने एनालिसिस दिए थे, मुझे याद है। यहाँ पे हम देख लेते हैं जी ओंडा के ऊपर। अच्छा जी, अच्छा तो ये वो एनालिसिस थे और यहाँ पे मैंने आप लोगों को समझाया भी था, शायद आप लोगों को याद हो कि कहाँ से आपने बाइंग करनी है यूरो कैड में और कहाँ से आपने सेलिंग की पोजीशंस फाइंड करनी है। तो ये बेसिकली वो जोन थे। स्टिल वैलिड है मार्केट उस वक्त आई थिंक यहाँ पे मौजूद थी। तो मैंने कहा कि ये नीचे आएगी, नीचे आने के बाद देन ऊपर आप इसे बाइंग की पोजीशन में फाइंड करें। तो अब अगर आप देखें तो H4 भी इसके अंडर क्लोज हो रहा है। तो अगर H4 इस जोन को ब्रेक करता है या H1 इसके ऊपर चला जाता है, ऊपर इसके क्लोज होता है, तो आप वहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए ये भी मैंने आप लोगों को समझाई थी ये चीज़, अगर आपको याद हो। और इस एनालिसिस को भी हम स्टिल वैलिड रख सकते हैं। इसके लिए आपको यूरो का इंडेक्स भी देखना चाहिए, उसके ऊपर भी आप लोगों को अच्छी खासी पोजीशंस नज़र आएंगी। अच्छा जी, तो इस वक्त लास्ट कल का मैंने एक एनालिसिस दिया था आप लोगों को। अगर आप देखें USJPY के ऊपर सिग्नल भी प्रोवाइड किया था, बड़ा ही लॉन्ग टर्म का सिग्नल था। यहाँ पे मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था आई थिंक जी, ये वाला सिग्नल था। तो इससे हमने 50 पिप्स ऑलरेडी कमा लिए। आप देख लें मार्केट यहाँ से फॉल हुई यहाँ तक। अब इसमें जो रिस्क रिवार्ड है वो आपने ज़्यादा रखना है। इसमें मैंने 2-3 जोन भी बनाए हैं, शायद आप लोगों को ये जोन नज़र आ रहे होंगे। अगर मैं आपको शॉर्ट टाइम फ्रेम पे दिखाने की कोशिश करता हूँ तो आप ये देखें, बड़ी ही क्लियर जो है ना इंडिकेशंस है क्यों मैंने ये सेल का सिग्नल दिया है। अगर आप मंथली कैंडल्स इसकी देखें तो थोड़ा सा मैं इसे 1 मिनट जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर प्राइस का ये, इसको आप हटा दें ताकि ये आप इस तरह ना समझें कि ये कैंडल है। ये कैंडल नहीं है बेसिकली, ये यहाँ पे जाके कल इसकी मंथली कैंडल क्लोज हुई है। मंथली कैंडल प्रिडिक्ट कर रही है कि इसमें थोड़ा बहुत बुलिश मूव होगा, अच्छा खासा नज़र आ रहा है। लेकिन जहाँ तक हम बात करते हैं तो ये इसकी मंथली क्या है जी, रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से हम ये प्रिडिक्ट ज़रूर कर सकते हैं कि मार्केट आएगी, इस जोन को भी टेस्ट कर सकती है। ये वाला भी जोन है हमारे पास, उसके बाद ये वाला भी जोन नज़र आ रहा है यहाँ तक भी। तो हम बाइंग की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो अगेन नीचे से ही फाइंड करेंगे। तो इसको मैं सेल कर रहा हूँ, आप लोगों को भी मैं रिकमेंड करूँगा कि सेलिंग की ट्रेड फाइंड करें। इस तरह ना हो कि आप नीचे से ही सेलिंग में बैठें, बल्कि ऊपर से सेलिंग करें और उस सेलिंग का आपको अच्छा खासा फ़ायदा भी होगा। तो ये हमारे आज के 5 एनालिसिस हो गए इंशाल्लाह। साथ साथ आपकी जो क्वेरीज़ आ रही होती हैं यहाँ पे, उनके भी मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। अभी काफ़ी सारे मुझे लग रहा है मैसेज आए हुए हैं,
تو اس میں بھی انشاءاللہ جو آپ کے کویسچنز ہوں گے اس کو بھی ہم رسپانس دیں گے. تو ساتھ ساتھ آپ نے ہمارے جتنے بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہیں انہیں آپ نے ضرور جوائن کرنا ہے. اور جو کاپی ٹریڈنگ کے حوالے سے دوستوں کے کویسچنز آ رہے تھے تو انشاءاللہ اس کا بھی ایک کمپلیٹ اوور ویو کریں گے. تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں. تو تب تک آپ نے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا ہے، اور اگر آپ کا کوئی بھی کویسچن ہو تو آپ مجھ سے ضرور پوچھ سکتے ہیں. تھینکس سو مچ، ہیو اے نائس ڈے. دعاؤں میں یاد رکھیے جی.